कि जीसीसी है क्या। विवेक, बहरीन की बात करें तो पर्सनल टैक्स के एंगल से थोड़ा अगर आप बताओ कि क्या टैक्स है वहाँ पे या नहीं है और आगे फ्यूचर का क्या प्लान है। इंडिया में सैलरीज अच्छी है। मैं जानता हूँ कितने लोगों दे गेट ओपनिंग पैकेजेस ऑफ 18 to 20 lakhs। इंडिया में दे आर लीडर्स बिकॉज देयर सॉफ्ट स्किल्स आर रियली स्ट्रांग। वो डिटरमाइन करते हैं आपकी ग्रोथ इन एनी डोमेन। सो जो आप काम करते हो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो टेक्निकली आपको 20% ही हेल्प करता है। 80% इज योर बिहेवियरल एंड द वे यू मैनेज योर सोशल इकोसिस्टम। अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करोगे तो कोई आपको समझेगा कैसे। द रियल लर्निंग इज नॉट बुक्स। Books is again the 20%, the real learning is the 80% exposure. इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वैल्यू वर्ल्ड वाइड काफ़ी है बेस्ड ऑन द ट्रस्ट फैक्टर दैट वी बिल्ड। पीपल वैल्यू इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। 25% are Indians there. And Indians are leading there. Indians are leading there. They are the, like I said, highest or the largest expatriate community in Qatar. And we have approximately 600 chartered accountants. आज का पॉडकास्ट बहुत मजेदार जाने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे इसमें जीसीसी गल्फ कंट्रीज की 3 कंट्रीज से जो कि होंगी कुवैत, कतर एंड बहरीन। सो इन 3 कंट्रीज से आईसीआई के चेयरमैन जो लोग 20-20 साल, 10-10 साल, 15-15 साल से इन कंट्रीज में रह रहे हैं और इनफैक्ट उन्होंने इस कंट्रीज में रह के आईसीआई के चेयरमैन तो हैं ही, इनफैक्ट काफ़ी ग्रो करा है और उनको इन कंट्रीज़ का इन डेप्थ नॉलेज पता है। तो हम पूरी किस कंट्री के बारे में भी समझेंगे, क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेस लेवल पे, जॉब्स लेवल पे और एज ए फाइनेंस की फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। लेट्स अंडरस्टैंड। सो हमारे साथ हैं कुवैत से आदित्य एंड कमलेश कतर से एंड विवेक बहरीन से। चलिए इन तीनों से डायरेक्टली बात करते हैं। चेयरमैन ऑफ आईसीआई ऑफ दोहा चैप्टर and Kuwait chapter and Bahrain chapter. So we have first of all I would like to talk to Kamlesh. So Kamlesh, thank you so much for coming. And then we have AVD. AVD आदित्य, आप थोड़ा बताओ कि AVD आपने ये बताया, मेरे को शॉर्ट टर्म याद नहीं हुआ कि what is AVD? My name आदित्य विक्रमधारुका। Okay, क्या बात है। मतलब actually AVD just change of D from B. D to B. D to B. Great. So now we have Vivek from Bahrain chapter. He is chairman of ICI of Bahrain chapter. Mr. Aditya is chairman of Kuwait chapter. So let's start with Kamlesh. तो मतलब इससे स्टार्ट करते हैं। मैं हिंदी बोलूँ चलेगा ना? बहुत बिल्कुल चलेगा। तो ठीक है। तो सारे इंडियंस हैं, तो मतलब इंडिया के झंडे गाड़े में आपने इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज में, एंड अगेन यू ऑल गाइस आर द चेयरमैन ऑफ दीज कंट्रीज। सो it's a proud moment for all our Indians. So to start with Kamlesh, आप थोड़ा if you can give some glimpse from background of कि दोहा में क्या ऐसा है versus India में। We'll talk about first say from finance angle and then country angle से, कि ताकि अपने जो students हैं, jobs हैं, youth है, उनके लिए across help हो पाए। Just to give a glimpse. If I talk about the glimpses at a high level, Doha gives a very fantastic opportunity for finance professionals because chartered accountants की value, Indian chartered accountants की value worldwide काफ़ी है based on the curriculum that we go through, based on the trust factor that we build. People value Indian chartered accountants. So if you compare from finance angle between India and Qatar, finance is very simple there because first of all you don't have any major complexities in taxation. It's very simple. In terms of accounting, it's not mandated, but still it is prescribed that you follow IFRS. So IFRS accounting is there. Apart from that, there are not any legal hurdles. Now transfer pricing is also built in. So complexity wise, finance is a very simple profession out there. And when you talk about chartered accountants, because the trust factor is there is a lot of opportunity for them. People value them. In fact, most of the CFOs, CXOs in those companies are Indian chartered accountants, and they are also in the decision making process. Because generally, if you see from country point of view, traditionally the localites were not into education, were not into growing up with these families. Now you can see young generational change has happened and people are coming, but earlier they used to believe on the
chartered accountants who used to come from India or any professionals, but Indian chartered accountants have created a niche for themselves in the area of or the market of Doha. So that's a wonderful. So, what is the overall, if we say, population of Doha? The overall or the latest population of Doha is 3 million, 30 lakhs, Okay. out of which 7.5 lakhs is the expatriate community of India, which is the largest expatriate. 25% are Indians there, Yes, 25% are Indians there. and Indians are leading there. Indians are leading there. They are the, like I said, highest or the largest expatriate community in Qatar. They are driving their professional, the business, commerce, in all areas. There are, and we have approximately 600 chartered accountants. 600 chartered accountants there. 600 chartered accountants. So as been India, so it means India is leading in Doha also. So Indian people are leading there also. 25% population, if you are saying, from India only. Yes, this phenomenon is across GCC. You will find Indian expatriate community is one of the highest within the GCC countries, and so is the case in Doha. हाँ, जैसे मैंने बोला कि 7.5 लाख Indians हैं out of 30 lakh population. So they are spread across all the spheres of the business ecosystem, and they are driving the business commerce in Doha. So मतलब you are saying कि GCC Gulf countries में काफी Indians मतलब spread across हैं सब Gulf countries. बिल्कुल. So that's great to actually know. So हमारे लिए काफी चीजें नई होंगी definitely. So now coming to you Aditya, तो अगर if you can talk about कि आपकी country में in fact आपकी country तो आपकी इंडिया है. So just to tell you, just to ask you कि भाई वहाँ पे क्या structure है अगर finance angle से और क्या कहना चाहोगे? सर देखिए बड़ा सिंपल है. We just had a session a while back talking about opportunities in GCC for professionals from India, right? So मैं 2013 से वहाँ पे हूँ, and I can tell you from a Kuwait point of view, opportunities are huge. Important ये है कि आपके लिए क्या fit होता है. That's the point. Because maybe for example आपका जो family structure है, your family needs you more here, so that is a challenge. However, if you are easy to relocate and आपके लिए जो job है या business opportunity है, if that equation works well, then it makes a lot of sense, because practically we got to appreciate that we are seeing a lot of people moving into GCC right now from different parts of the world also, because from a tax planning point of view. I know a lot of my Indian friends who have nothing to do with GCC are trying to move their base from a tax efficiency point of view. But अगर मैं कुवैत की बात करूँ, from a job perspective, it is very good. The purchasing power is very strong. It is the strongest currency in the world. One Kuwaiti dinar is today around 280 rupees. So, money is not everything in life, but it means a lot. So before to make that statement, हमारे पास उतना होना चाहिए वो statement दे सकें. But talking about economies, of course, India is growing at a different pace. But India grow करना है, आपको अपने आप को position करना है कि where you position, maybe you are not growing at that pace. So you might find a different space where you can grow faster, because it is a relative comparison. But from an economic point of view, Kuwait is an oil-driven economy. जब तक oil है, I believe the country has nothing to worry. But yes, along with that, GCC across is focusing on non-oil related revenues. Avenues for professionals are immense, because this country is not very exposed to taxes. So people back in India, they have great experience. They have gone on the complexity to the next level, and we are just entering. So, there's a lot of synergy between the two countries from professional outlook. That means all GCC countries, people are going there to set up because of taxation का कहीं ना कहीं like benefit है business sense में. But from job opportunity also, you are saying there are lots of opportunity. So there are two things यहाँ हम mix कर सकते हैं तो viewers के understanding के लिए. एक है अपनी खुद की tax planning. दूसरा है because GCC में ऐसा कोई personal tax है नहीं as of today. India में personal tax, individual tax is pretty high. Having said that, जो corporate taxes, VAT and all
सर्टन कंट्रीज में आ गया है, सर्टन में आने वाला है, दैट ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर टैलेंट टू मूव बिकॉज दे हैव द एक्सपर्टीज. करेक्ट So because end of the day सर आप देखो, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, बिकॉज ई वी और सी इज राइट, नंबर्स मैटर्स. आप बोलते हो मेरी सैलरी 50 लाख, राइट, मेरी सैलरी 1 करोड़. आजकल इंडिया में ये नंबर्स मिलना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. पीपल आर गेटिंग दीज नंबर्स. करेक्ट. बट व्हाट आर यू टेकिंग होम? वो 30% करके 1 करोड़ से 70 लाख आएंगे. हाँ, और यहीं पे क्या होता है कि जब तक इंडिविजुअल टैक्सेशंस नहीं है, देयर you really make a corpus at a face. But of course there are outliners. आपको लोग ऐसे भी मिलेंगे जो by far well positioned है compared to people in Gulf. So outliners है, आपको देखना है आपके लिए क्या fit है. So there is no right equation. So first family, then professional aspirations, your capabilities. Because you are in India, अभी मैं कैलकाटा से हूँ. To just take you off the topic, मैं जब कैलकाटा में था मैं थोड़ा बहुत ईस्टर्न इंडिया को जानता था, थोड़ा बहुत. कोई बिहार से पढ़ने आ गया कैलकाटा, कोई असम से आ गया. दैट्स इट, दैट वाज माय एक्सपोजर. मैं आज कुवैत में आके मेरा एक्सपोजर पैन इंडिया है एंड ग्लोबल लेवल पे. I know people across nationalities, and let me put it on record by telling you that today I know India better by going out of India. You name a state and I know at least 20 people from that state. मैं कैलकाटा में रह के मैंने almost 21-22 years I was in Calcutta. I hardly knew people in Nimach, in MP, in Bhopal, in Banaras. I hardly knew people there. Now, you tell me now I can call anybody and get anything done in my ecosystem. So that is the beauty of going out of your comfort zone. Correct. You be more Indian when you are outside. हाँ, मतलब मैं इंडिया का प्यार वो जहाँ मर्जी चले जाओ. अरे सर, मैं बता रहा हूँ 26 जनवरी को मैंने कभी स्कूल के सिवा और कुछ नहीं किया. अगर कभी कुछ फंक्शन हुआ, रिपब्लिक डे, अभी रिपब्लिक डे 26 जनवरी पे मैं एम्बेसी जाता ही जाता हूँ. क्या बात है. सो यू आर मोर इंडियन व्हेन यू आर आउट ऑफ इंडिया. लव ऑफ इंडिया हमारा नहीं सर, इसमें एक चक्कर बढ़ेगा ही है. बढ़ेगा बाहर जाकर. इसमें एक छोटा सा चक्कर है. क्या होता है, व्हेन यू हैव समथिंग इट इज ऑब्वियस, इट इज ग्रांटेड. जब नहीं होता है तो अभाव उसका आपको मिस फील कराता है कि यू वांट एसोसिएट. सो दैट्स माय टेक. ग्रेट. या नाउ विवेक, अगर आप मतलब इनफैक्ट आपसे पहले बात करके वी अंडरस्टैंड कि यू आर द यंगेस्ट चेयरमैन अक्रॉस ओवरसीज. तो दैट्स ए वंडरफुल अचीवमेंट. मतलब वही बात है कि इंडिया के लोग पूरे कंट्री में बाहर दुनिया में जाके सब जगह इंडिया के सबसे पहले वो तिरंगा ले रहना हमारा वो कर्तव्य हो जाता है. एंड यू ऑल गाइज आर मेकिंग ऑल इंडियंस प्राउड कि भाई हम जहाँ भी जाएंगे हम वहाँ पे ऊपर ही रहेंगे. तो विवेक, आप बहरीन में रह रहे हो फ्रॉम लास्ट 7.5 years. तो अगर आप थोड़ा बहरीन के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो कुछ अगर इफ यू कैन शो सम क्लिप्स. First of all, Shant, thank you so much for having the GCC representation here. But just to start with a minor correction, or I'll say more of a disclaimer, जो youngest वाली पदवी है, so it's not officially validated, but it's just with the love and gratitude of the fellow members and current structure, we assess that there is a possibility. नहीं, आप दिखने में लग ही रहे हो कि हम यंगेस्ट हो गए. ऐसा भी नहीं है. मतलब In Bahrain, yes, I'm the youngest one because Bahrain chapter was established in 1986. उसके बाद since 2005 approximately that time we have been really active, and year on year we just picked up. And over the last 20 years roughly, yes, I'm the youngest chairperson. And rather, instead of saying मैं बोलूँगा it's a team effort, or because of the past leaders, because without past there is no future, so they ensured that Vivek becomes the chairperson and they helped me groom into it. और उससे ही बहरीन पे आता हूँ. एनीवन आस्क कि विवेक बहरीन कैसा है, कि बहरीन अच्छा है बुरा है, I cannot complain because Bahrain has been good to me. I went there as a person जिसने 1 साल काम किया है और आर्टिकलशिप करी हुई है, just to explore a country and got to have so many opportunities. आप फाइनेंस की बात करो, नेटवर्किंग की बात करो, चैप्टर एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़. और जो फाइनेंस की बात कर रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है जनरली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. आज मैं किसी से बात करूँ तो वो बोलते हैं कि हमें वी आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मुझे बाहर जाना है, आई वांट टू सेट अप अ बिजनेस. तो बिजनेस में व्हाट इज़ द प्राइमरी थिंग वी लुक इनटू कि अकाउंटिंग सर्विसेज कर सकते हैं. बट दिस इज़ एन एरिया विच आई पर्सनली बिलीव
we should move from chartered accountants being the accountants only to advisors. We have to be the financial advisors. जैसे आदित्य ने अभी मेंशन किया, taxation is coming up, new regulations are coming up. बहरीन में भी टैक्सेशन आर कमिंग, वो तो हम सुन रहे हैं, उसके बारे में विल कम बैक अगेन, बट आप In general, तो financial advisors का रोल क्या होता है ना? The Indians by nature are analytical people, so they are good with numbers, सब कुछ. And not just in GCC, globally Indians have that, I'll say it's in DNA या कुछ होगा. For that reason, Indians are good with numbers. तो Indians are good accountants, but now they need to be the financial advisor. उनको बताना पड़ेगा कि if you do that investment after 5 years, what would be the trajectory? आपको आगे कैसे move करोगे? So वो area है, this is untapped area. Currently, it's being taken care of by other professions without naming any. So this is the area where chartered accountants can exclusively explore opportunity. तो ये एक टिप होगी आपकी तरफ से हमारे व्यूअर्स की एडवाइजरी जो एरिया है फ्रॉम फाइनेंशियल एंगल कि भाई क्या आपका फ्यूचर है, क्या आपकी नेक्स्ट ईयर्स की क्या आपके नंबर जा रहे हैं, कैश फ्लो जा रहा है, तो दैट एरिया इज अनटैप या इन्वेस्टमेंट एरिया होगा फ्रॉम दैट एंगल, कहाँ इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहिए. सो दैट्स रियली हेल्पफुल फॉर ऑल आवर व्यूअर्स. So thank you so much. और now मतलब GCC कंट्रीज की सबसे पहले if we talk about सबसे फेमस जो होता है वो होता है पर्सनल टैक्स. भाई जाए सबसे पहले कि यार कुछ देना नहीं है, वो ऑयल बेस्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पे पैसा बहुत है गवर्नमेंट के पास, एंड इट इज, और पर्सनल टैक्स मतलब जीरो है, आपको कुछ नहीं पे करना, आप जाओ जो कमा रहे हो आपकी पॉकेट में है. करेक्ट. तो बट अब कुछ नई चीज़ें सुनने में आ रही है कि जैसे यूएई में कुछ टैक्सेस आ रहे हैं. सो अगर हम तीनों कंट्रीज की बात करें तो अगर अभी बात करते हैं सिर्फ पर्सनल टैक्स की, तो पर्सनल टैक्स मतलब तीनों कंट्रीज में, जैसे आप कमलेश जी अगर आप बताएं कि दोहा में क्या है, और या क्या आगे की प्रोबेबिलिटी फ्यूचर में है कि वो बढ़ेगा, अभी आएगा, अभी है या नहीं? देखिए, अभी अगर आप देखें तो दोहा में कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है. ओके. एंड अगर आप फ्यूचर को देखें तो रिसेंटली ओमान में पर्सनल इनकम टैक्स लागू करने की बात चल रही है. डेट्स फाइनलाइज नहीं है, बट इन प्रिंसिपल दे हैव एग्रीड टू लॉन्च पर्सनल इनकम टैक्स. Knowing the history of GCC staying there for almost 2 decades now, whatever is adopted in one country, similarly that concept, once it materializes, that concept is adopted by other countries. So अगर ये स्कीम लागू हो गई ओमान में या किसी और कंट्री में, तो दे या दुरुस्त वो उस कंट्री में, दूसरी कंट्री में अडॉप्ट हो जाएगी. तो पर्सनल टैक्स आएगा, लेकिन नियर फ्यूचर में नहीं आएगा. बिकॉज 2-4 साल नहीं, 2-4 साल नहीं, अब मान लो 5-10 साल के पहले नहीं आने वाला है. बिकॉज वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन टैलेंट into Doha or any GCC country is the fact that there are no taxes. I'll give you a small example, एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ. अगर आप एवरेज लेवल की सैलरीज कंपेयर करो तो आपको आज के दिन में इंडिया में जो सैलरी है और GCC कंट्रीज में जो सैलरीज हैं उनमें आपको बहुत डिफरेंस नहीं मिलेगा. मतलब अगर यहाँ 50 लाख सैलरी है या 10 लाख सैलरी है तो वहाँ पे भी 10 लाख आपको वहीं भी 10 लाख या 50 लाख या कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग उससे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा. लेकिन आपका प्राइम फैक्टर जो है वो है टैक्स, जो आपकी मेन सेविंग है. तो आज अगर जैसे आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे से आपको यहाँ अगर 1 करोड़ मिलता है, आपका इन हैंड आपको 55 या 60 लाख से ज़्यादा नहीं आएगा. राइट, कंसिडरिंग इन द 30% ब्रैकेट एंड ऑल. राइट. राइट. और वहाँ ये डिफरेंस ये है कि आप सीधे सीधे आपका 1 करोड़ आपके हाथ में आ रहा है, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ से हल्का सा ज्यादा है. अभी तो अगर इसकी बात करें तो करेंसी क्या है, करेंसी क्या फर्क, क्या मतलब इंडियन रुपीस की बात करें, इंडियन रुपीस में अगर आप बात करो तो आज के दिन में कतरी रियाल जिसको हम कहते हैं तो वो आपका 23.50 INR है. इंडियन 1 QAR इज इक्वल टू 23.50 आए. और अब अगर हम खर्चे की बात करें, फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट 10 मान लो 10 लाख रुपए सैलरी है वहाँ पे, तो 10 लाख मेरी पॉकेट पे जा रहा है. तो रेंटल इनकम या कंज्यूमर साइड के रेंटल पे मेरे को कितने पैसे चाहिए होंगे वहाँ पे रहने के लिए? आप मान लो आपका 40% खर्चा लग जाएगा 10 लाख में. 10 लाख में से आप 10 लाख जो भी अमाउंट है, मैं 40% आपको परसेंटेज में बता रहा हूँ.
because rental is one area, especially in Doha. In some part of GCC it is less, but Doha में rental incomes are high, rental expenses are high. So आपको rental comprises almost your 15 to 20% of your salary, and then बाकी आपका 20% में करके your 40% expenses and 60% is your saving. That is the general trend that I have seen. नहीं, बट 10 लाख वाला मतलब 4 लाख में रह पाएगा, उसको मान लो उसको 1 BHK ही चाहिए तो नहीं, मैंने एज अ परसेंटेज टर्म बोला 10 लाख वाला बंदा शायद वहाँ नहीं रह पाए, लेकिन जो यंगस्टर्स जाते हैं वो आपको 15 से 20 लाख में जो CA पास करके भी जाते हैं एट द वेरी वेरी अर्ली एंट्री लेवल, वो जा रहे हैं. और अगर उसके नीचे वाले लेवल के बंदे हैं जिन्होंने नॉर्मल बेसिक एजुकेशन की है, ऐसे नॉर्मल अकाउंटिंग करके जा रहे हैं, तो देन दे हैव टू मैनेज. बिकॉज अदर थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज हर किसी को वहाँ फैमिली वीज़ा नहीं मिलता. यू नीड टू हैव अ सर्टेन इनकम रेंज जिसके ऊपर आपको फैमिली वीज़ा मिलेगा. तो आप फैमिली को नहीं ले जा सकते, तो यू आर गोइंग देयर अकेले जाना पड़ेगा. बैचलर स्टेटस. तो बैचलर स्टेटस में खर्चा कम है, तो यू आर समहाउ एबल टू. अगर मैं मोटा मोटा बात करें कि इंडिया, आप इंडिया बेस्ड हो तो आपको इंडिया की खर्चे पता है. अगर इंडिया वर्सेस दोहा की बात करें तो वो डबल है, ट्रिपल है, मतलब आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द नंबर कि मेरे को यहाँ पे अगर 10,000 रुपये लगते हैं किसी काम में तो वहाँ 20,000 लगते हैं या 30,000 लगते हैं, मोटा मोटा अगर बात करें. मोटा मोटा आप मान के चलो तो 1.5 गुना तो लगता ही है. एंड अगेन इट विल डिपेंड ऑन द ब्रैकेट कि आप रेंटल की बात कर रहे हो या फूड स्टफ्स की बात कर रहे हो या घूमने फिरने की बात कर रहे हो या आप कुछ चीज़ें खरीदते हो. अब जैसे आप गाड़ी या कोई दूसरी चीज़ खरीदो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, वहाँ पे उस पर कस्टम्स ड्यूटी नहीं है तो वो ऑब्वियसली चीपर सस्ता है. है. जो गाड़ी यहाँ 1 करोड़ की मिलेगी आपको, वो गाड़ी वहाँ 40 लाख 50 लाख में मिल जाएगी. तो अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग टैरिफ्स के हिसाब से आपको वो देना पड़ेगा. फेयर इनफ, फेयर इनफ. अगर हम आदित्य अगर आपकी कंट्री की बात करें तो उसमें क्या मतलब इनकम वाइज क्या है, या सेम क्वेश्चन. करेक्ट. So just Ishan to explain the viewers, because ये बहुत important है समझना. From a short term perspective क्या आउटलुक होना चाहिए, from a long term perspective क्या आउटलुक होना चाहिए. So very simple, there is no tax. Having said that, you know it's an oil driven economy. People are moving to sustainability, EVs, and then you know because of that सबको पता है या सबको लगता है कि यार अगर ऑयल नहीं रहेगा तो क्या होगा. तो ऑफ कोर्स द कंट्री इज ऑल्सो प्लानिंग फॉर दैट, राइट. सो द पर्पस ऑफ टैक्स इज नॉट दैट दे नीड रेवेन्यू टू सर्वाइव. दे आर क्रिएटिंग द गवर्नमेंट, आई बिलीव सो, दिस इज माई ओपिनियन, नॉट आई एम कोटिंग एनीबॉडी, दैट दे आर क्रिएटिंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स अदर दैन the natural resources, because that is how is the sustainability for any economy. Having said that, now let's think from individual point of view that why you should come. All right, as my dear friend Kamlesh mentioned, कि what we save tax is a big chunk of our income, but आप सबसे पहले उसको भी छोड़ के ये सोचो. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के आउटलुक से बता रहा हूँ कि एक आप फ्रेशर हो, आपने CA कंप्लीट किया है, and let's talk numbers because I think numbers will make people understand better. So Tier 2, Tier 3 के आसपास में आपको 6 से 8 लाख के रेंज पे इनिशियल पैकेज मिलेगा. दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग एज ऑफ टुडे. एंड हायर साइड में आपको 10 to 12. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउटलाइनर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द मास हु जॉइंस कंसल्टिंग, बिग 4 एटसेट्रा. मैं आपको कुवैत का नंबर दूँ. कुवैत में आपको एक फ्रेशर को इन अ कंसल्टिंग सेटअप, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड ऑल दैट, अराउंड 500 KD to 600 KD का रेंज मिलेगा. मैं वही बता रहा हूँ सर. KD is 1 KD is around 280 रुपीज़. तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लो, 1.25 लाख से 1.5 लाख का रेंज होता है. तो यहाँ जो आपको 70,000 से आई वुड से 70,000 से 1 लाख का जो रेंज है, वहाँ पे 1.25 लाख से 1.5 लाख का रेंज है. नाउ द क्वेश्चन इज आप यहाँ पे कितना बचा रहे हो, वहाँ पे कितना बचा है, राइट. यहाँ पे अगेन आई एम अज्यूमिंग इन दैट नंबर यू वुड सेव अराउंड 30,000 to 40,000 रुपीज़, करेक्ट, इन इंडिया, बिकॉज टैक्स कटेंगे, रेंटल देना है, जो भी एज अ बैचलर आप करेंगे, 30 to 40 यू save here. There you are saving in that 1.25 to 1.5 lakh rupees. आप कम से कम 50% बचा रहे हो. The difference is the alpha. अब यहाँ से ग्रोथ क्या होगा. अब आप यहाँ से जब ग्रो कर रहे हो 70,000 से, आपको 3 से 5 साल लगेंगे उस 70,000 को 2 लाख लेके साथ में. हाँ, करेक्ट. वहाँ पे आप 1.5 लाख पे बैठे हो,
आप 3 साल में उसको 3 लाख कर लोगे, 4 लाख कर लोगे 5 साल में, यू नो, सो दैट डिफरेंशियल इज मोर। एंड देन यहाँ पे आपका जितना इनकम बढ़ रहा है, टैक्स की वजह से उसका इम्पैक्ट और कम होते जा रहा है। हाथ में उतना कम आता है। यहाँ पे वो बढ़ रहा है बट टैक्स है नहीं। एंड एज वी नो, हम सब बोलते हैं एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द थिंग इज हम स्टार्ट छोटा करते हैं बट विद एक्सपीरियंस हम बहुत बड़े स्केल पे चले जाते हैं, राइट? तो जब आप बड़े स्केल पे जा रहे हो, आपने स्टार्टिंग जब बड़ा किया ना, तो वहीं से आपका नेचुरली इट एक्सपोनेंशियली ग्रोज। नाउ फॉर एग्जांपल, टू बी वेरी सिंपल, getting 5 lakh there, getting 3 lakh here already. And trust me, when I talk about cost of living, at least Kuwait is very cheap. The only expensive part over there is the rental. जो आपका आप प्रॉपर्टी ओन नहीं करते हो। कई बार बीइंग एन इंडियन, आप अपने पेरेंट्स के अगर एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो तो यू आर ब्लेस्ड टू हैव अ होम, यू डोंट पे रेंटल्स, बट देयर यू हैव टू पे रेंटल्स। यू डू नॉट यूजुअली ओन इन कुवैत, बिकॉज कुवैत में तो एक्सपैट्स को प्रॉपर्टी ओन करना ऐसा अलाउड है नहीं, unlike few other countries in GCC. So I really feel that cost of living and all that is very cheap, and given the incremental amount, it is commercially viable to come. But the other aspects are, देखिए पैसा एक पार्ट है, दूसरा है ease of living, right? So आज आप अपने देश में हो ना, या आपका देश, आप कुछ भी कर सकते हो, there is no questions asked, करेक्ट right? वो आपका देश नहीं है, करेक्ट। आपको उनके रूल्स, उनके गाइडलाइंस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो, then they might ask you to leave. So all those, you know, trade-offs are there. But I mean, I've been staying there for maybe 12 years, 20 years, and I'm very happy. There are challenges. I do face challenges, but not something that forces me to quit. नहीं, वो तो चैलेंजेस तो देखो, चाहे इंडिया में रहो चाहे कहीं भी रहो, बट मेरे को आपके पॉइंट से ये लगता, मतलब आई जस्ट थिंक कि देखो, आप बाहर जाते हो आप ना, तो आपकी एफर्ट बढ़ जाती है। मैं घर में रहता हूँ तो मैं, मतलब मैं इंडिया में हूँ तो मैं अपने घर में हूँ, तो मैं थोड़ा रिलैक्स रहता हूँ, उतनी एफर्ट नहीं करता जितनी मैं बाहर जाके मेरे को होता है कि मैं आए यहाँ ग्रोथ के लिए हूँ। तो मैं आई थिंक दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिससे पूरा मतलब जो भी लोग इंडिया के बाहर जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनका ग्रोथ लेवल मतलब मल्टीप्लेक्स होता है। सर ये तो है ना, आपने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दिया, कंफर्ट जोन को छोड़ दिया। आप यहाँ हैं, ठीक है यार, घर है, घर वाले हैं, कुछ हो जाएगा, नहीं अब वहाँ पे तो सर यू एवरेज फैमिली लाइफ बता रहा हूँ, यू आर टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली नीड्स, यू आर टेकिंग केयर ऑफ द लॉजिस्टिक्स, यू आर टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन नीड्स। यहाँ पे फैमिली, अगर जो जॉइंट फैमिली का जो कल्चर है अपने इंडिया में, बच्चे बड़े हो जाते पता ही नहीं चलता। वहाँ पे तो आपको स्कूल लेके जाना, लेके आना, ट्यूशंस लेके जाना, लेके आना, everything a parent has to do by themselves because that's the culture. Culture वैसा है। And that is where we engage more with the family time also. That's also I think कि आप वहाँ पे आपको फैमिली टाइम बहुत मिलती है। इनफैक्ट ये इस पॉइंट पे मैं आना चाहूँगा, विल डिस्कस इन डिटेल कि भाई क्या फैमिली टाइम का क्या इम्पैक्ट है। विवेक, बेहतरीन की बात करें तो पर्सनल टैक्स के एंगल से थोड़ा अगर आप बताओ कि क्या टैक्स है वहाँ पे या नहीं है, और आगे फ्यूचर का क्या प्लान है? अभी पर्सनल टैक्स देखिए ईशान जी, आई थिंक इट विल टेक टाइम। पर्सनल टैक्स, लोग क्या टैक्सेशन में बहुत फोकस कर रहे हैं, पर्सनल टैक्स कितनी जल्दी आ जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स कितनी जल्दी आने वाला है। सो कॉर्पोरेट टैक्स डेफिनेटली यू विल सी इन सम टाइम नियर फ्यूचर, लेट्स विद इन नेक्स्ट 5 years इटसेल्फ, और हो सकता है कि अगले 1 साल में दिख जाए कॉर्पोरेट टैक्स तो। ओके। और दूसरा रही बात पर्सनल टैक्स की, तो एक टैक्स फ्रेमवर्क को मैच्योर होने में टाइम लगता है। जो अगर आपको पता है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में इंडिया ने जीएसटी इंप्लीमेंट किया, इट टुक ऑलमोस्ट ओवर 10 years। ऐसे जीसीसी में दे हैव बीन डिस्कशंस गोइंग ऑन फॉर वेट इम्प्लीमेंटेशंस। बहरीन में वेट इम्प्लीमेंट हुआ 2 से 3 साल पहले। नाउ gradually as the framework is maturing, उनको लगा कि corporate tax also can be implemented, so they are working on it now। जब corporate tax framework mature होगा तब personal tax आएगा। और एक जो common मैं बोलूँगा conception, misconception रहता है लोगों में, लोग perceive ऐसे करते हैं कि ठीक है tax free region तो इसलिए मुझे जाना है, which I never encourage personally। Reason being, आप taxation अगर आपका सिर्फ reason है तो those years were different। Every economy has its own charm and a different time period। Correct। वो टाइम पीरियड आज से जो 20 साल पहले गए, they minted money, really good amount of money, salaries were really high, no taxation। इंडिया में टैक्सेशन था, इंडिया में सैलरी ज्यादा नहीं थी, बट जैसे हमने कई बार अभी डिस्कस किया, इंडिया में सैलरीज अच्छी है। आपकी
जब मैंने सीए क्लियर किया था, द स्टार्टिंग पैकेजेस वाज in the around in the range of 7 lakhs 8 lakhs वहां पे यहाँ पर अरे इंडिया वहां पे क्या था? उस टाइम पे 18-20, ठीक है, मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा 2.5 लाख हो गया। हूँ, वो स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। आज मैं जानता हूँ कितने लोगों दे गेट ओपनिंग पैकेजेस ऑफ 18 to 20 lakhs इंडिया में, विच यू विल ऑल्सो एक्सेप्ट। और वहां पर अभी भी जो है स्टार्टिंग पैकेजेस फॉर जूनियर्स और जो पहले फर्स्ट टाइम कमर्स, इट्स इन द सिमिलर रेंज। मतलब 18-20 लाख है। हाँ। बट इंडिया में 18-20 लाख पैकेज मतलब वो एक कैटेगरी के लोगों का है अभी भी, बट जो अगर हम एवरेज जो है ऑडियंस वो कहीं ना कहीं 10 लाख 12 लाख टाइप होगा, 7 लाख नहीं होगा, 8-10 लाख टाइप होगा। मैंने अपना स्टार्ट किया 6.5 में, सो 6.5 से स्टार्ट किया था और आई वाज हैप्पी विद द पैकेज। मुझे इंडिया पैकेज इंडिया में नहीं, मैंने भी इनफैक्ट 2008 में 6 लाख पे स्टार्ट करा था। मैंने 2016 में सिमिलर पे स्टार्ट किया। तो आप देख रहे हो वो 8 साल में ग्रोथ नहीं थी, पर जो अगले 8 साल है ना, इट जंप्ड। तो वहां पे हाउएवर आप जीसीसी की बात करो, स्टार्टिंग पैकेजेस सिमिलर रेंज में, मैं स्पेसिफिकली बाहर इनका बोल रहा हूँ। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो टैक्सेशन में क्या है, आपको यहाँ पर ग्रेजुअली हो सकता है नया पैकेज और भी बढ़े, तो वहां पे आपको कॉम्पनसेट हो जाएगा। जो दूसरा की फैक्टर रहता है ना, जैसे आदित्य ने शुरू में मेंशन किया था, कनेक्टिविटी, दैट इज द बेस्ट। आप जिस कंट्री से है इंडिया में, इंडिया इज सच अ ह्यूज कंट्री, लोग बाहर बोलते हैं इंडिया इज नॉट अ कंट्री, बाहर में कई लोग बोलते हैं इंडिया इज अ कॉन्टिनेंट। तो इतना बड़ा है। हाँ। तो आप सबसे कनेक्ट नहीं कर सकते। बट बहरीन में रह के क्या हुआ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। नाउ वी नो पीपल फ्रॉम ऑल रीजन्स इन इंडिया, सारे कल्चर्स जानते हैं। We are sitting together in Delhi, WOFA, attending all conferences, speaking different people. तो वो एक कनेक्टिविटी जो नेटवर्क बिल्ट होता है ना, that determines your growth. जो आदित्य जी ने अभी बोला कि हाँ, आदित्य इंडिया से बाहर जाके इंडिया से ज्यादा कनेक्टेड रहते हो। एग्जैक्टली। तो वहां पे वो आपका जो पॉइंट है ना, that gives you growth, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नहीं बट ठीक है, एंट्री पॉइंट के लिए हमने मान लिया कि ठीक है। अभी 18-20 लाख है, बट उसमें ग्रोथ है या नहीं? वहाँ पे ग्रोथ है या वो भी ग्रोथ आपके अकॉर्डिंग स्लो है या एज कम्पेयर टू इंडिया? सी उसमें एक मैं वापस विदाउट रीइन्वेंटिंग द व्हील, मैं आपकी बात पे आता हूँ। आपने बोला था अभी कि बाहर जाते हो ना आप, कंफर्ट फैक्टर से, कंफर्ट जोन से बाहर आते हो, तो आप थोड़ी मेहनत कर रहे हो। तो जीसीसी का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा अभी तक, इफ यू आर विलिंग टू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, देन इट्स अ पैराडाइज फॉर यू, इट्स अ प्ले फील्ड। बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप क्रिएट कर सकते हो विच हेल्प्स यू टू ग्रो। माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैं शुरू में जीसीसी या आई वॉज ऑलवेज एस्पिरेशनल पर्सन, मुझे चाहिए कि ऐसे करूँ वैसे करूँ, दिन में 16 घंटे काम करे। आई वेंट देयर, आई रियलाइज कि यहाँ तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, जो मुझे चाहिए नहीं था इतना। इंडिया वालों को चाहिए नहीं। इंडिया में मेहनती हाथ ज्यादा होते हैं। मुझे 14 घंटे काम करने की आदत, वहां पे बोले 8 घंटे बाद विवेक आप घर जाओ, क्या करा मैंने देन, बट आई रियलाइज कि वहां पे जो बचा हुआ टाइम है, दैट यू कैन एक्चुअली यूज एंड यू कैन ग्रो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल वेल्थ आल्सो, पर्सनल लाइफ एज वेल एंड फैमिली। पर्सनल ग्रूमिंग एंड पर्सनल ग्रोथ के लिए सो वही डिटरमाइन करती है। कल हमारी एक सीनियर लीडर से बात हो रही थी, उन्होंने बोला ही इज वन ऑफ द सीनियर लीडर इन फाइनेंस डोमेन इन बहरीन स्पेसिफिकली। उन्होंने बोला विवेक, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर रियली गुड, आई हैव बीन सीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्रॉम लास्ट 30 इयर्स, बट एक जो प्रॉब्लम होती है, दे आर रियली गुड टेक्निकली साउंड, वेरी वेल, बट सॉफ्ट स्किल्स नहीं होती। हाँ, ये तो मतलब है। तो सॉफ्ट स्किल्स डिटरमाइंस योर ग्रोथ। जो आप पैकेज की बात कर रहे हैं ना, तो आज हमारे आदित्य है, आप इनकी सॉफ्ट स्किल्स देखिए। वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम हिम। कमलेश है, आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम बिकॉज दे आर लीडर्स, बिकॉज देयर सॉफ्ट स्किल्स आर रियली स्ट्रॉन्ग। वो डिटरमाइन करती है आपकी ग्रोथ इन एनी डोमेन। Somehow, मतलब दिस इज द राइट पॉइंट कि इसको आप मतलब सॉफ्ट स्किल को तो आप छोड़ ही नहीं सकते ना, दिस इज मैंडेटरी एज ऑफ नाउ। सर ये बोला गया है, जस्ट टू ऐड ऑन दैट, देयर इज अ 20-80 रूल, राइट? सो जो आप काम करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो टेक्निकली आपको 20% ही हेल्प करता है। 80% इज योर बिहेवियरल एंड द वे यू मैनेज योर सोशल इकोसिस्टम। काम ओवरऑल, जैसे आपका नेटवर्क कैसे है, आपके कनेक्शन कैसे हैं, आपकी आगे बोलने मतलब बोलते हो, आप इंट्रोवर्ट हो क्या हो, कैसे बात करते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मतलब अलोंग विद स्किल सेट, वो तो चाहिए ही चाहिए, बट ये भी चाहिए टू ग्रो। The 20% sets the foundation, हाँ, and then the big 80%
takes it off. एक चीज मैं इसमें और ऐड करूँ, आपने अभी इंट्रोवर्ट बोला, ठीक है, लोग कई सोचते हैं, आई हैव सीन सम पीपल, सम जूनियर्स एंड सम बैचमेट्स एज वेल, वो ज्यादा बात नहीं करते कभी, बोलते देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ग्रो, ये एक परसेप्शन हो जाता है, बट दैट इज नॉट करेक्ट आल्सो. पीपल से कि विवेक स्पीक एज वेल अ लॉट समटाइम्स कि ज्यादा बोल रहा है. आई एम माई सेल्फ एन इंट्रोवर्ट, बट मुझे लगा But if you have a circle of people you trust, obviously आप जब GCC countries में move करते हो, you need to know the right people. If you have limited people as well, but you know the right people, then it's a good roadmap for you. वहाँ से आप kick off कर सकते हो. So having right people around you is very important. So you need to know who is the right person. इससे मेरे को याद आया, इनफैक्ट क्या है, इंट्रोवर्ट की उसकी बात कर रहे हैं, जो हम स्कूल टाइम की बात करें, जो बच्चे बैक बेंचर थे, स्टूडेंट्स थे और वो बोलते बहुत थे और हर काम करते थे, पढ़ाई कम करते थे, वो अगर आज की बात करें तो उसमें 90% लोग बहुत अच्छा ग्रो कर चुके हैं, सक्सेस कर चुके हैं. और जो लोग सिर्फ पढ़ते थे और बात नहीं करते थे किसी से, वो कहीं ना कहीं मतलब सीट एक्सचेंज हो चुकी है, बैक पर चले गए हैं. तो डेफिनेटली जो सॉफ्ट स्किल वाला आपने पॉइंट करा, बिल्कुल 100% वैलिड है कि वो एवरीबॉडी हैज टू फोकस, जो भी यूथ है उसको उस पर भी फोकस करना चाहिए along with technical. So that again, that has a big role in the education system. Correct. कि हम सब academic knowledge पे बहुत importance देते हैं as parents, as friends, as family, even the education system. हमें अब उसके beyond लोगों को real life के लिए ready करना है. Correct. Because unless you can't handle it, देखिए, it's all about exposure. Okay, you know, I'll give you a very very small example. आज अगर मान लीजिए अपने, मैं इंडिया बोल रहा हूँ बट मैं भी इंडिया से ही हूँ, थिंक कि मैं कुएं पे हूँ तो मैं इंडिया कर रहा हूँ. अगर इंडिया में किसी भी एक इंसान को जॉब चला जाता है, क्या डिप्रेशन में चला जाता है. You have to go out, meet people, understand कि लोगों के साथ क्या कुछ हो चुका है. वो आप इंडिया में भी एक्सपीरियंस ले सकते हो, भाई. तो दी रियल लर्निंग इज नॉट बुक्स. Books is again the 20%, the real learning is the 80% exposure. I know people who were fired and they were okay. You got to meet those people. Because point जो है आपका कि मेरे को इसमें ये लगता है कि we need to, मतलब एजुकेशन सिस्टम में जैसे नेटवर्किंग है, मेरे रिलेशन कहाँ तक है. आजकल अगर आप बात करें बिजनेस एंगल से, जो बड़े लोग कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, $1 बिलियन छाप रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कनेक्शन है. ऐसे बैठ के मीटिंग हुई तो अल्टीमेटली इट्स अ नेटवर्क. इट इज नॉट ए टेक्निकल नॉलेज, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट ए रिलेशन जो काम कर रहा है अक्रॉस ग्लोब. तो दैट इज डेफिनेटली सॉफ्ट स्किल, नेटवर्किंग, ये कहीं ना कहीं, बट सॉफ्ट स्किल तो डेफिनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में है. बट यस, हाउ टू सोशल कैसे होना है, आपको नेटवर्किंग कैसे करनी है, ग्लोबल कैसे होना है, ये चीजें भी आई थिंक यू नो. I can just give you a very simple example. ठीक है, अभी यहाँ पे 100 जन हैं, वो सब maybe more from the people who we know at least for time. These people, when they interact with people and their counterpart who might be from a certain city or branch, I could assess वो बंदा अपने ecosystem में तो conversation strike करने में हिचकिचा रहा है. And the other person is very comfortably talking कि he could strike the conversation. ये problem social skills का है. सोशल स्किल्स क्या है. करेक्ट. अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, आपको ये समझना पड़ेगा. इट इज अ वेरी वेरी सिंपल मैथ. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल स्किल्स. नाउ वेरी प्रैक्टिकली वी गॉट टू अंडरस्टैंड दैट जब तक आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करोगे तो कोई आपको समझेगा कैसे. आपके अंदर जो भी नॉलेज है, कंटेंट है, दैट हैज टू कम आउट. प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा. सो दैट इज वेयर वी ऑल नीड टू, यू एज बहुत फोरम्स में बोला गया, नॉलेज वाइज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कोई बीट नहीं कर सकता. करेक्ट. बट इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक सर्टेन लेवल पे आने के लिए समय लगता है टू लर्न व्हिच ही और शी माइट नॉट हैव लर्नड एट द अर्ली फेज ऑफ लाइफ. करेक्ट. सो हम वही केजन होता है, हम होते इतना है पर हम दिखाते इतना है. बाकी अदर प्रोफेशन में वो होते हैं शायद इतना होगा, शायद, पर दिखाते इतना है. सो दैट्स व्हाई आई सेड इन द लॉन्गर रन यू गॉट टू कंपेयर द सक्सेस ऑफ अ सीए वर्सेस अ शॉर्ट रन. बट ये सॉफ्ट स्किल में ऐसा है, बट हमारे नॉर्थ इंडिया में लोग, खास तौर पे पंजाबी हरियाणा में, पैसों की बात कर रहा हूँ, पैसे होते इतने, खाते इतने. ये बात एकदम सही है. मेरा ओएनजीसी में जब मैंने जॉब चालू किया था, मेरा फ्रेंड था पंजाबी फ्रॉम दिल्ली, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने जब मेरे सेविंग्स अकाउंट देखी, वो
हुंडई एक्सेंट खरीदना चाह रहा था, उस वक्त 7 लाख की लगभग थी। तो मैं कहीं और से ट्रांसफर होके आया था, तो मेरे बैंक में कुछ बैलेंस था, कुछ 1.5-2 लाख का बैलेंस था। तो वो मेरे को बोलता अगर इतने पैसे मेरे पास होता मैं अभी मर्सिडीज खरीद रहा होता। देखो कॉन्फिडेंस लेवल देखो, मतलब दो मैं भी पंजाबी, बट कॉन्फिडेंस लेवल देखो होता है इतना है, दिखाना ये है कि फैक्ट है। तो अगर हम बस हमने पर्सनल टैक्स को कंक्लूड करा कि एज ऑफ नाउ देयर इज नो पर्सनल टैक्स इन ऑल 3 कंट्रीज, और ना आगे 4-5 साल तक अभी कुछ नहीं है। तो मतलब अगर किसी को कुछ अपॉर्चुनिटी है तो इन कंट्रीज जिस कंट्रीज में जाना चाहिए, और उसका एटलीस्ट जब तक ये बेनिफिट है, और आई थिंक ये रहेगा ऑफ कोर्स इंडिया की कंपैरिजन में तो हमेशा अगले 100 साल तक, मतलब इट इज ए ऑनगोइंग बेनिफिट कि वो रहेगा। तो पीपल कैन थिंक ऑफ, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है यू कैन गो देयर और यू कैन लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। तो अब अगर बात करें जस्ट टू ऐड कॉर्पोरेट टैक्स, तो इनफैक्ट अभी यूएई में, दुबई में कुछ कॉर्पोरेट टैक्स कुछ जोन्स में आया है, ऐड हुआ है। सो व्हाट अबाउट कमलेश जी, दोहा में क्या है अभी है कॉर्पोरेट टैक्स बेसिक, अगेन वही समझना पड़ेगा। लाइक थोड़ी देर पहले आदित्य भी जो बोल रहे थे, ये जितने टैक्सेशन अभी आ रहे हैं, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ डाइवर्सिफिकेशन एंड ट्राइंग टू बी एट पार विद द ग्लोबल रेगुलेशंस। क्योंकि कहीं जब आप अपनी कंपनी को लिस्ट करने जा रहे हो या आप अपनी कंट्री को प्रमोट करने जा रहे हो, तो दे ट्राई टू सी वेदर your regulations and compliances are at par with the international standards. Having said that, specifically to answer your question, Ishan ji, corporate tax है but only on foreign entities who are working in Qatar. अगर आपकी लोकल स्पॉन्सरशिप है या आप किसी के साथ पार्टनर हो एज ए स्पॉन्सर, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है। जो फॉरेन एंटिटीज सर्विस प्रोवाइड करती हैं, on their income they have to pay 10% corporate tax. ओके, डिस्कशन है कुछ की कॉर्पोरेट टैक्स आने वाला है लोकल पे, लोकल नहीं, आई डाउट कि लोकल पे वो कॉर्पोरेट टैक्स लाएंगे, बिकॉज इन अ वे इफ यू सी दे आर सपोर्टिंग द लोकल इंडस्ट्रीज, बिकॉज प्राइमरली सारी गल्फ कंट्रीज इंक्लूडिंग दुबई इज बेस्ड ऑन एन ऑयल एंड गैस इकोनॉमी, and that oil and gas economy or the entire reserves or the entire revenue is owned by the state government, right? So when they disburse the amount, it is to support other ancillary industries which are working there, and they are mostly owned by the local people out there. So to tax them, it won't serve the principle or the purpose behind their intention of because it will be like taking the money out of their own money that they are disbursing or supporting them with, because they have big plans or there are policies in place where they support local entrepreneurs in a big way. So I don't see personally corporate tax coming on local entities in the near future, and that is one of the reasons why, like at least in Doha I know VAT also has been delayed for a long time, because it disturbs the entire ecosystem, the cash flow projections, the way the industries are working if VAT is introduced. So just to conclude on the corporate tax thing, I don't see any. अगर फॉरेन के लिए है कितना टैक्स वैसे मोटा-मोटा? अभी 10%, बट तो भी बहुत कम है एज कंपेयर टू इंडिया। या डेफिनेटली वो है, क्योंकि इंडिया में टैक्सेस थोड़े कुछ ज्यादा है। लाइक फिर वो डिफरेंशिएशन रहेगा नहीं, if they also start taxing them at 30% and all, then foreign companies may not. नहीं, बिल्कुल जो पहले नहीं था अब इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वो इंसेंटिव और वो बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, इसलिए वो कहीं ना कहीं जो ऑयल बेस है वो कहीं ना कहीं जीसीसी कंट्रीज को बहुत हेल्प करता है एज ए ग्रो, मतलब एज ए इकोनॉमी को चलाने के लिए, जो कि इंडिया में वो इतनी चीजें नहीं है ऑयल। और ये भी आपको समझना पड़ेगा, वो जो चलाने के लिए कंपनी आती है वो एक्सपर्टीज यहाँ है नहीं, और न ये एक्सपर्टीज हो सकती है। लाइक अगर आप तो इंडिया में जैसे आप देखो, दो स्टेट ओन्ड कंपनी ONGC was one of the companies जो initially drilling करती थी, which was state owned. Then Reliance is a homegrown company. उसने technology लाई. There you won't find these homegrown companies developing on these levels. So there will be a Shell or a what you call British Petroleum or a KN coming and doing those. So you can't tax them exorbitantly because they are your partners in developing those fields in extracting oil. So you have to give them that benefit, you know, you can't tax them heavily. That's why this is a minimum tax which has been implemented. Again, like Aditya was saying before, it's not that they need their money, right? It's just to have a level playing field,
some sort of complying with the पूछने के लिए कि भाई अब आ रहे हो कुछ तो देके जाओगे बोल सकते हो। तो बहरीन की बात करें तो बहरीन में वी आर कमिंग कि कुछ कॉर्पोरेट टैक्स आ रहा है, ऐसा कुछ है वहाँ पे? Yes, हाँ श्याम जी, ये discussion has been going on. Corporate tax, so people were anticipating कि इसी साल आ जाए, 2024 में आ जाता, but नहीं आया. Now people are expecting 25. Let's say 25 में नहीं आता. There are no final dates as of now, but very soon you will see. क्योंकि बहरीन में already DMTT तो आ चुका है, domestic minimum tax basically, which is for international organizations. Certain thresholds are there, तो local organization generally उस bracket में fall नहीं करती. So it's going to be introduced soon. और अब टैक्सेशन की बात करते हो तो इट्स नॉट गोइंग टू बी रियली ह्यूज नंबर. जो यूएई आप रीजनल अदर रीजन्स देखते हो, रीजनल टैक्सेशन रिजाइम जो रही है वो 10 से 15% के बीच की है, तो इसी उतना ही रेंज में रहेगा. रहेगा. हाँ, बट फिर इस अगर बहरीन में कॉर्पोरेट टैक्स आता है, बट दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर जो हमारे जैसे टैक्स Exactly. एडवाइजर हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहां पे तो कॉर्पोरेट टैक्स किसी को पता नहीं है. एग्जैक्टली. जो कॉर्पोरेट टैक्स आज यूएई में भी आया है तो वो भी तो इंडिया से ही टैलेंट जा रहा है टू हैंडल दैट. तो वहां पे आपको क्या लगता है कि कितनी अपॉर्चुनिटी है उस एंगल से, टैक्स एंगल से? डेफिनेटली उसका इतनी अपॉर्चुनिटी दैट एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 years you can see many people going there and setting up their advisory firms. This is वो वेट की बात है, VAT की. बहरीन में जब VAT इम्प्लीमेंट हुआ, without naming any again, there were few entities just incorporated to take care of VAT services, ओके, and they flourished like anything. अभी now they are doing really well. बिकॉज़ वहां पे कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं, So, and they first mover started की- first mover बस मोबाइल advantage. की एडवांटेज होगी. And later on also first mover के बाद भी एक, जैसे पहले बात कर रहे थे हम, framework mature होने में टाइम लगता है. That once you do the implementation, there are different stages in taxation. ठीक है, tax planning होगी पहले, if it implements what will happen, then implementation, then integration with the system, because आजकल हम IT कर रहे हैं सब जगह. अब जिस app implementation, आप ERM systems हो गए जितने भी ERP systems, so you have to do integrations, so IT भी इधर पड़ता है. उसके बाद regular monitoring, so it's a complete cycle. गवर्नमेंट कंप्लायंस में भी एफर्ट लगेगी, उसको भी समझने में, लोग Yes, समझने में. yes. कहीं ना कहीं लोग तो ग्लोबल सेम ही होता है, कॉर्पोरेट Yes. टैक्स है, क्या लगना है, कैसे कैलकुलेशन होनी है, Exactly. मोर और लेस सेम होती है. सो Opportunities are there. Yes. सो अगर आदित्य आप बात करें तो कितना कॉर्पोरेट टैक्स है अभी गयात में, या देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स? So very simple answer, there is no corporate tax. Having said that, सबसे पहले एक चीज हम अलग अलग जोन्स में बोल चुके हैं कि जीसीसी है क्या. सबसे पहले एज अ व्यूअर आपको जानना चाहिए जीसीसी ये जो है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल है. इट इज 6 countries coming in together. यूएई, बहरीन, ओमान, दोहा, केएसए एंड कुवैत. सो बेसिकली जो जीसीसी फ्रेमवर्क में होता है, that is sooner or later coming into other countries also. Broad differences नहीं होते. Every country might have a certain number associated. So for example, अगर KSA में corporate tax आ गया है या दुबई में अगर आ गया है, then sooner or later it has to come there, as Vishal rightly said. So आज नहीं है, but आएगा. आएगा, मतलब sooner or later. Sooner or later, because see वो कहीं ना कहीं फॉलो करेंगे. Yes, because जो आप we कह रहे know, हो. like जैसे यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट है, right? जो EU डिसाइड करता है वो सारे कंट्रीज अवॉइड करते हैं. उसी तो तरीके से जीसीसी जो जीसीसी का भी एक कंसेंसस होता है. हाँ, Like as we were casually talking a while back about VAT, it was a proper framework agreed by GCC, right? Having said that, countries have a choice. बीच में कोविड आ गया, बहुत सारी चीजें जो वो प्लान की होंगी उस तरीके से नहीं हुई. ये कोविड है, इसमें मेरा एक पॉइंट है. चलो पर इसको कंक्लूड करते हैं. आप कह रहे हो कि कॉर्पोरेट टैक्स जैसे बहरीन में आ रहा है, देयर आर चांसेस, तो उसी तरह It opportunity- might come because when the GCC framework says कि करना है, सब करते हैं based on their situations, their economic requirement, their people expectations, right? So, but there is a lot of synergy between the GCC. Okay. तो मीन्स so अगर किसी व्यूअर को ये समझना है कि प्रेडिक्ट करना है, तो दे शुड सी एक कंट्री क्या कर रहा है, 2 कंट्री क्या कर रहे हैं और 2 कंट्री क्या नहीं कर रहे हैं. सो दैट विल गिव देम एन आइडिया. बिकॉज आप जब मूव करना चाहते हो कंसल्टिंग के लिए, जॉब के लिए, ये सारे मैक्रो फैक्टर्स मैटर करते हैं. मैटर करते हैं. और आप अभी ग्रोथ पता अब आप सोचोगे
अरे यार आज तो दोहा में पर्सनल टैक्स भी नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स भी नहीं है, चलो चलते हैं। बट आपने कंसिडर ही नहीं किया कि यूएई में आ गया है, सऊदी में आ गया है, बहरीन में आ गया है, ओमान ने अनाउंस कर दिया, फॉर व्हाटएवर, फॉर एग्जांपल, राइट? सो दोहा में भी आएगा, आप उसको इवैल्यूएट करो कि हाउ स्ट्रॉन्ग दोहा इज, कि ये पर्टिकुलर टैक्स अगले 2-3 साल नहीं आएगा। देखो मेरे को दो एंगल लगते हैं, एक बिजनेस एंगल, मेरे को बिजनेस करना है तो मेरा पर्सनल टैक्स मेरा वो क्या है, बट कहीं ना कहीं वो इंडिया से बेटर है पूरी जीसीसी में, तो वो है ही है। प्लस एक है मेरी एज एन अपॉर्चुनिटी एज ए टैक्स एडवाइजर, तो वो भी ओपन है क्योंकि कहीं ना कहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो दैट्स बिजनेस के लिए रहेगा अपॉर्चुनिटी कि आपका कैश फ्लो बढ़ेगा, और अपॉर्चुनिटी आ रही है तो एडवाइजर के लिए रहेगा कि यू आर गेटिंग ए न्यू थिंग, एंड वो पूरी कहते हैं ना वो फील्ड खाली पड़ी है आपके खेलने के लिए, आप जैसे प्ले करोगे वैसे वैसे होता जाएगा। करेक्ट। सो अगर ये तो आपने कॉर्पोरेट टैक्स समझा कि मोर और लेस एज ऑफ नाउ नहीं है, बहरीन में आएगा, कुवैत में भी आएगा, आपके कंट्री में दोहा में भी कहीं ना कभी आएगा। सो अगर हम वीएटी की बात करें, जो वैट कहते हैं जिसे हमें वैल्यू एडेड टैक्स, तो अभी क्या तीनों कंट्रीज में हमारे आ चुका है या अभी पाइपलाइन में है या आ रहा है? अगर स्टार्ट करें कमलेश जी दोहा से। हाँ, तो VAT अगेन, लाइक आदित्य ने जस्ट कहा, अगेन अंडर द यूनिफाइड फ्रेमवर्क, जो GCC यूनिफाइड फ्रेमवर्क है, उसमें डिसाइड हुआ था 2017 में कि वैट सब कंट्रीज में लागू होगा। बट बहरीन में हुआ है, UAE में है, ओमान में है, लेकिन अभी GCC में अगर आप देखो तो कुवैत और दोहा 2 कंट्रीज हैं जहाँ की VAT नहीं लागू हुआ है। बट दोहा की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो देयर आर सर्टेन रीजंस क्यों नहीं लागू हुए। 2017 में दोहा में एक ब्लॉकेड हुआ था, कुछ कंट्रीज ने मिलकर ब्लॉकेड किया था, उस वजह से शायद नहीं लागू हुआ। उसके बाद फुटबॉल का वर्ल्ड कप था, फीफा, तो वैट लागू होने से कैश फ्लो प्रोजेक्शंस, कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंज आते हैं, तो उसलिए नहीं लागू हुआ। लेकिन अभी भी बातें चल रही हैं। एंड अगेन वहां पे क्या है, इंटरनल डिसीजंस आर नॉट अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन टू know the actual reasons, but still we are hearing that VAT may come. There is a tax council which is deliberating the various provisions, because again oil and gas sector पे उसका क्या impact होगा, because that's the main economy. उसमें कैसे जो GCC के draft regulations है उसमें क्या tweaking होनी चाहिए या as it is adopt होनी चाहिए, कुछ चल रहा है. We don't know too much in the public domain what is happening, but what we have been hearing is shortly it will come. It's only a matter of when it will come. टाइम की बात है, आएगा जरूर आएगा, तो वो अपॉर्चुनिटी ओपन रहेगी। हाँ, लेकिन आज के दिन में VAT नहीं है। ओके राइट। तो अगर उसकी बात करें, कुवैत की बात करें, तो वहाँ पे VAT है या अभी वहाँ पे भी नहीं है? नहीं सर, VAT नहीं है, and based on my experience and understanding, I don't think it's coming anytime soon. There are a lot of other things which is happening from the taxation point of view, as Vivek said, Bahrain, DMTT, which is for multinational entities. DMT का मतलब मिनिमम टैक्स, जो क्या कहते हैं, डोमेस्टिक मिनिमम टैक्स। ओके, So having said that, that is for multinationals. The threshold in Kuwait is 750 million euro. 750 million euro? Yes, you heard it right. INR में थोड़ा समझाओ। तो वो सर वो फिर कैलकुलेटर अभी कैलकुलेटर की दुनिया में हमारा मेंटल मैथ जीरो हो गया, बट on that right amount. But having said that, that's the focus right now. But that will set the context for other taxation avenues, because तब आपकी मशीनरी गवर्नमेंट लेवल पे, कंपनी लेवल पे बैठने लग जाती है, and we can see the intention of the country that they are now thinking out of the box. Right? Okay, the main income is, and in the near future will be, oil and gas. But having said that, that's not the only source of revenue where they want to depend upon. Other areas भी explore, Which has to be taxation as one of the revenue streams for any country. तो विवेक, अगर बहरीन की बात करें तो बहरीन में वैट है अभी या आने वाला है? बहरीन में ऑलरेडी वैट है। अच्छा, ऑलरेडी तो बहरीन आगे चल रहा है इस मामले में दोहा और कुवैत से। मैं इसको वापस करेक्ट करूँ, थोड़ा सा आगे नहीं चल रहा, हम साथ साथ चल रहे हैं, जस्ट यूजिंग डिफरेंट डोर्स। अच्छा, तो वैट में क्या रेट क्या है वैसे? वैट में जो अभी रेट है 10% है। तो 10% फ्लैट है किसी भी चीज पे या एनीथिंग? Yes, जो भी yes. डील करते हो आप 10% स्ट्रेट फ्लैट रेट, स्लैब रेट सी वहाँ पर।
ओके या तो आपकी जीरो रेटेड हो गई, एग्जेम्प्टेड हो गई सर्विसेज, वो अलग है। उसके अलावा जो भी रेट है इट्स अ स्लैब रेट 10%, सिंपल स्ट्रक्चर। ओके। तो अब इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करें, एडवाइजरी की बात करें, तो अभी वो मैच्योर हो चुका है वेट का, या अभी भी बाकी है कि पीपल कैन गो एंड फाइंड आउट मोर अपॉर्चुनिटी वेट में? सी अभी लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, बट यू विल नॉट गेट एज मैनी एज पीपल गॉट अर्लियर। जो आपको पुराना फीडबैक मिलेगा दैट वाज डिफरेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट मार्केट। अभी के you are trying to enter into a market which has already been penetrated, तो वहाँ पे आपका मटेरियलाइजेशन, फेस वैल्यू बनाने में हो सकता है रिलेटिवली टाइम लगे, क्योंकि मार्केट 3 साल से लोग हैं वहाँ पर, और नॉट जस्ट इंडियंस, द एंटायर साउथ ईस्ट एशिया, they are also experts in VET. So you'll find different nationalities, different people working on the VET. So market is quite, I'll say, quite bad at this point in time. Still, if you are willing to invest time and actually develop your face value, तो अच्छा मार्केट है वहाँ। बट कॉर्पोरेट टैक्स की ज्यादा ऑप्शन मिलेंगी Obviously, because it's going to be implemented. going to be implemented. So अब अगर हम इसको बात करें जॉब अपॉर्चुनिटीज पे या बिजनेस एंगल से, अगर आप दोनों को अलग अलग करके बताओ, तो क्या आपको लगता है कि बहरीन में जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने पहले ही बताया, स्टार्टिंग फॉर सैलरी के बारे में, उसी तरह बिजनेस अपॉर्चुनिटी में डू यू थिंक कि बहरीन में देयर आर ऑप्शंस कि अगर आपको वहाँ पे लोकल कुछ स्टार्ट करना है, और इज देयर एनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री यू वांट टू हाईलाइट, या इस इंडस्ट्री में आपको बेनिफिट बहुत है? See, मैं आपको जैसे बताता हूँ, एक चीज़ आपको कभी किसी कंट्री में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की बात करनी हो तो राइट पॉइंट ऑब्वियसली वी सी ए रिप्रेजेंटेटिव्स आर ऑलवेज देयर। दूसरा पॉइंट होता है इंडियन एम्बेसीज, बिकॉज इंडियन एम्बेसी क्या होती है, on a going period of time, every 6 months or a year or after a certain period of time, they keep publishing different industry sector reports. अच्छा, कि किसमें क्या ग्रोथ हो रही है? जिसमें क्या ग्रोथ हो रही है, बीट मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, लेदर इंडस्ट्री। तो इनफैक्ट आप इंडियन एम्बेसी फॉलो करते हैं, समटाइम्स यू विल फाइंड दीज रिपोर्ट्स, वहाँ से आपको अच्छा आइडिया लग जाता है। और बहरीन की आप स्पेसिफिकली बात करते हैं तो बहरीन हैज़ बिन प्रीडोमिनेंटली ऑक्यूपाइड इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज। अब with recent digitalization, globalization, things are moving. तो in terms of बारे में आप बात करें कौन से एरियाज में अपॉर्चुनिटीज है, AI and tech, definitely you have opportunities. Manufacturing sector, it's not penetrated much deeper. Reason being, क्योंकि labor cost is cheaper in India and China. तो मैन्युफैक्चरिंग आपको यहाँ ज़्यादा मिलेगी। GCC में as I believe, other manufacturing is not penetrated. So if someone can find a gap, सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में है ऑलरेडी, या डिजिटल आपका सर्विस सेक्टर हो गया। उसके अलावा प्रोडक्ट मार्केट में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपकी, बिकॉज सर्विस में यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज, बट प्रोडक्ट आपके हो गए, कोई भी IT प्रोडक्ट्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो गए, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गए, फॉर देम इट्स अ गुड मार्केट। इनफैक्ट यू नो few days back, 2 weeks back, मैं मलेशिया में था, कुआलालंपुर में। तो वहाँ क्या मैंने नोटिस करा कि इंडिया में तो क्या है, हर चीज़ की फैसिलिटी आ गई। आप स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट 10 मिनट में ग्रोसरी ऑर्डर करो, घर पे ग्रोसरी आ जाती है। अभी तक आपने ऑर्डर ही करा होता है, वो पर्सन खड़ा होता है। तो मतलब एक काफ़ी डेवलप कर चुका है, काफ़ी ऑप्शंस है, काफ़ी स्टार्टअप आ चुके हैं। इनफैक्ट वो चीज़ मेरे को मलेशिया में इतना नहीं मिला, दो इनफैक्ट आई वाज देयर इन सिंगापुर ऑल्सो, वहाँ पे भी इतना कुछ नहीं मिला जो इंडिया में है। तो वो अपॉर्चुनिटी, अगर आप तीनों कंट्रीज की बात करें तो फॉर एग्जांपल बहरीन में ऐसी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं कि आर यू गेटिंग से एवरीथिंग ऑन यू नो फोन कॉल और फोन ऐप में मैसेज करना, या प्लीज एग्री। यस, So, you know, Shan, there's a trick which you're not understanding it right. Population, इंडिया की पॉपुलेशन अपना स्ट्रेंथ है वो, और वही अपना चैलेंज भी है एट टाइम्स, राइट? आपको एक, आप सोचो आप एक Tier 2 सिटी में हो, आपको उस सिटी में उतना पॉपुलेशन मिल जाएगा जो शायद दूसरे कंट्री का 50% पॉपुलेशन, जिसकी आप कंपेरेबल्स को, करेक्ट। and we are talking about purchasing power, right? So that is the challenge when you are comparing India versus the 3 countries we are Correct. sitting upon. Correct. But having said that, everything right now is tech driven, is on the apps. आपको खाना चाहिए, ग्रोसरी चाहिए, everything is on the apps. And that is again thanks to COVID, because COVID ने लोगों का lifestyle thinking change करना। For example, if there is a food delivery company, if they have a markup,
एज अ प्लेटफॉर्म, जैसे स्विगी बोलते हैं आपके इंडिया में, मिडल ईस्ट में तराबात है, डिलीवरू है, these are the companies that are pretty common there. Having said that, if they even have a markup, people don't mind paying that markup, but before COVID, we had a mentality, अच्छा वो डिलीवरी चार्ज दे रहा है और रेस्टोरेंट में जाएंगे तो ये सेम चीज मेरे को 20% सबसे आगे मिलेगा, तो मैं जाके खाना या लेके आना प्रेफर करता था. But after COVID, being dependent, the mentality has accepted that incremental, not because मेरे को मेरे टाइम की ही वैल्यू है, but now convenience का आदत हो गया है. कि मेरे को Convenience. Correct, कि बटन घुमाया हो गया जैसे आपने बोला कि 30 मिनट्स में पिज्जा है. So things, people are changing with this, yes. And I think every country among the three has the same ecosystem. अच्छा, मतलब है वहाँ पे सब जगह है, अवेलेबिलिटी है, और इतना स्टार्टअप कल्चर है. जैसे इंडिया में स्टार्टअप कल्चर बहुत ज्यादा है कि देयर आर लॉट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कमिंग. आज की न्यू जनरेशन, देयर आर स्टार्टिंग लॉट्स ऑफ स्टार्टअप, न्यू आइडियाज, बिजनेस. पीपल आर सॉल्विंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स. सर यहाँ पे कैच है, मैं पॉपुलेशन वाले कैच में जा रहा हूँ कि आप इतने बड़े और बड़ी ग्लोबल मार्केट है इंडिया. तो आप किसी का तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, किसी प्रॉब्लम बड़ी है, जितनी मार्केट इतनी सारी प्रॉब्लम है, किसी का तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और वो किसी में अगर आपको थोड़ा पॉपुलेशन मिलता है तो आपके लिए इनफ मार्केट टू सर्वाइव एंड ग्रो. योर टारगेट हैज बी वेरी क्लियर. Correct. Because the opportunity cost is very high. करेक्ट. और अगर दुबई की बात करें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वाइज, तो क्या आपको फ्रॉम योर व्यू पॉइंट की कितनी अपॉर्चुनिटीज होंगी? Yeah, again, from business point of view, just like the other GCC countries, I would say there are tremendous opportunities in terms of setting up business. Again, manufacturing या production sector की आप बात करोगे, will not be that. But हाँ, if you would like to set up your own offices from a chartered accountant point of view or a consulting point of view, those opportunities are still there. But again, it's a volume game. Their population ही कम है, तो आप volume game बढ़ा नहीं सकते. प्लस द इंक्यूबेशन कॉस्ट, और जो आपको कॉस्ट शुरू में आप जब तक स्टेबलाइज होते हो आपको 2 साल 3 साल लग सकते हैं, वो 2-3 साल का जो कॉस्ट है वो आप बेयर नहीं कर पाओगे. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात देता हूँ, अगर इंडिया में आपको ट्रेड लाइसेंस लेना है तो आप कहीं भी अपने घर का एड्रेस या कहीं एक नेम लगा के आप ट्रेड लाइसेंस ले सकते हो. लेकिन वहाँ अगर आपको लाइसेंस लेना है तो आपको पहले ऑलरेडी एक एस्टेब्लिशमेंट आपका होना चाहिए, विच यू हैव टू टेक इट ऑन रेंट. और वो लाइसेंस कभी आपको मिल जाता है, कभी उसमें 7-8 महीने भी लगते हैं, बिकॉज अदर अप्रूवल्स आर पेंडिंग. अब आप उस 7-8 महीने का रेंट जब दे रहे हो तो वो आपके लिए फिजिबल नहीं रहता. ठीक है, हैविंग सेड दैट देयर द कल्चर ऑफ हैविंग वर्चुअल ऑफिसेज, मल्टीपल ऑफिसेज इन वन बिल्डिंग, यू नो द एड्रेस जो आपको ऑफिस के हिसाब से मिलते हैं, दोज थिंग्स हैव कम. बट स्टिल सेटिंग अप अ बिजनेस यू नीड टू हैव डीप पॉकेट्स, राइट? शुरू करने के लिए, शुरू करने के लिए. बट अगेन बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम वो ग्रोथ आप दिख नहीं पाओगे. बट सर्विसेज सेक्टर जैसे आपने कहा, कंसल्टिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन या टेक सर्विसेज कुछ करना है, दैट अपॉर्चुनिटी इज देयर. बट कतर में अभी जो एक मेन अपॉर्चुनिटी जो है लोगों के लिए is again, I think somewhere last year they had a web summit, and after that they announced a big fund for startups, tech startups, and they are also financing up to $5 million for each tech startup. Very nice. Right? So if somebody has a startup and they can pitch it well there, they are encouraging them to come. ऐसा तो नहीं है कि कोई डोमेस्टिक का रेजिडेंट होना जरूरी है उसके लिए? नहीं, उसके लिए डोमेस्टिक रेजिडेंट जरूरी नहीं है. There are certain guidelines. Again, I am not aware of the full detailed guidelines. But because we had a conference in October on startup search where we had panelists coming in from the local authorities who spoke about it, there is a scope if somebody is into startups, into tech startups. वहाँ पे आपको government will help you. The startup invest. They have something called startup invest. They will help you in developing that. There will be obviously some guidelines, but yeah, they will help you. बट कहीं ना कहीं टेक स्ट्रक्चर के कारण व्हाट इज माय एक्सपीरियंसेस कि लोग दुबई में कहीं ना कहीं देयर आर सेटिंग अप मेन कंपनीज देयर, एंड वहाँ से वो बाकी कंपनीज सब्सिडरी बना के एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करना, वो कहीं ना कहीं टैक्सेशन एंगल से आई थिंक अगर आपको मेन कंपनी, क्योंकि आपकी मेन कंपनी पे टैक्स कम लगेगा और बाकी एक्सपोर्ट सर्विस पे भी इम्पैक्ट होगा, तो उसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट है जीसीसी में. बट इस पे आपका ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट आएगा. हाँ, ट्रांसफर प्राइसिंग तो वो हर जगह है, वो तो हर जगह है. People should not shift the profit, they should shift the substance for a better tax plan. बट फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट करना है किसी कंट्री में, वो कहीं ना कहीं ईज है. फेयर इनफ.
थैंक यू सो मच कमलेश जी, थैंक यू सो मच आदित्य, थैंक यू सो मच। तो बड़ा मतलब एक्चुअली अच्छा लगा, एंड यू नो इनफैक्ट व्यूअर्स के लिए तो नॉलेज बहुत आइडिया होगी, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा नॉलेज आ रही है कि मतलब जीसीसी कंट्रीज में से 3 मेन दिग्गज वो भी आप चेयरमैन लेवल और आपने पूरी ग्रोथ देखी है, तो डेफिनेटली इट्स एज एडेड वैल्यू टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट, थैंक यू सो मच। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, so let's keep connected and then let's keep growing. Thank you so much, Ishant, Ishant for and team. giving us this opportunity, and I wish you all the best in your endeavors that what you're doing. Thank you so much Kamlesh ji, thank you so much. All the very best, and thank you so much, Ishant and team. So you really are doing a great job. Thank you so much. So Vivek. definitely it should help a lot. Thank you. आई होप नेक्स्ट टाइम जब हम प्रवासी भारतीय दिवस में जाए तो हमें और प्रवासी भारतीय मिले, बिकॉज ऑफ दिस पॉडकास्ट। बिल्कुल आदित्य जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you. Thank you. Okay.